नहीं किया था। हाँ जी, तो पहले आपके पास है वाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड इंटेक्ट साइंस। हाँ जी, कौन आंसर बताएगा इसका? वाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड इंटेक्ट साइंस? सर हम बताएं। तमन्ना, और आप बता दो कुमकुम, ठीक है। Sir, on comparing the features of the science with the management, we find that the one feature of science is present in the management, where two features are not present. So management can't be considered as a pure science, but we can call it as an abstract science. Sir, वो हाँ, features भी क्योंकि बताएं। आप, हाँ एक मिनट में थोड़ा बता दूं कि आपके जो ये प्योर साइंस नहीं बोले जा सकते, एक्सट्रैक्ट साइंस है, क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटी जो है वो प्योर साइंस की नहीं है। हाँ, अब बताइए कौन सी फीचर्स हैं? Sir, systematic body of knowledge in the science organized in systematic study. Material is available which is used in acquire the knowledge of science. Like science is in management also, this is availability of systematic and organized study material. So first feature of science is present in management, and second feature, principles are based on experiments. Scientific principles are developed through observations and tested through repeated experiments. The management principles are also developed through observations and experiments, but since management deal with the human beings and the human behavior can't be accurately predicted, so this feature of science is partially present. And third feature, universal validity. Scientific principles have universal applications and validity. Management principles are not exact like scientific principles, so this features of science is not present in the management. ठीक है, हाँ ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कंचन बताएगी। कंचन, आर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग? हाँ, क्वेश्चन आपके लिए। ओके, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन strives to attain different objective, enumerate any two such objectives. Management of any organization strives to attain different objectives. Enumerate any two such objectives. बताइए। सर इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं ना सर? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। Organizational objective. These objective aims at prosperity and growth of the organization. The three important organizational objectives of a manager are survival, profit, and growth. Social objectives. Social objectives of the organization deals with the commitment of the organization toward the society. Personal objective. Personal objective are related to the employees of the organization. हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक यू। बिंदिया, आप सुन रहे हैं? इसी क्वेश्चन को बताइए तो तबीयत ठीक हो गई, मैं ऐसा मानता हूँ। बिंदिया, इसी क्वेश्चन को जो कंचन ने एक्सप्लेन किया, इसी को रिपीट कर दो आप। हाँ जी, आवाज नहीं आ पा रही मेरे को। तो तमन्ना, आप बताओ इसको। कौन से क्वेश्चन को सर? सेकंड क्वेश्चन। सर दो बतानी है ना ऑब्जेक्टिव्स। सर एक तो सोशल ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक, हाँ। एक्सप्लेन भी करना है क्या सर? अब एनिमरेट बोला ना, एनिमरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करो। सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट। इट मींस मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और सोशल ऑब्जेक्टिव है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीजनेबल रेट, एजुकेशन सिस्टम हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना हो गया। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए है। मैनेजर इन इंडिया डू द सेम वर्क इन मैनेजर इन यूएसए और जापान और जर्मनी। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाय इट?
हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है तमन्ना के लिए ही सर है। मैं बताऊं? हाँ, तमन्ना कौन है? सर प्रीवियस ही है। यस सर, हाँ बस तो, प्रीवियस ही है सर। हाँ, प्रवेश प्रवेशिव या प्रीवियस है? प्रीवियस ही है सर, कि मतलब मैनेजमेंट हर जगह यूज होती है। हाँ, प्रवेशिव बोलते हैं इसको, प्रीवेशिव। ठीक है, मैनेजमेंट इज प्रवेशिव। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, सागर ढुल, आपका क्वेश्चन फोर्थ है। A cloth manufacturer distributes its defective product at free cost after getting them repaired from a Nari Niketan at lower cost to orphans. Which value being asserted in this solution? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सागर आंसर दो इसका। सर नहीं आ रहा। नहीं आ पा रहा। साक्षी, साक्षी आंसर दिस क्वेश्चन। सर्विस मोटिव है। सर्विस मोटिव से के बात तो नहीं बन पा रही। सर्विस मोटिव का तो यहाँ पे कोई खास भी नहीं बन पा रहा। हाँ जी, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर है इसमें, देखा ना, सोशल वेलफेयर ना कि सोशल सर्विस। ठीक है, हाँ जी। सर ठीक है। शक्ति सोनी ने, हाँ ठीक है, शक्ति सोनी नहीं बोल रही है। शक्ति सोनी प्रेजेंट है क्या? शक्ति सोनी या मनजीत सोनी, दोनों कोई प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी, विक्रम राजपूत, आर यू प्रेजेंट? विक्रम भी नहीं है तो भटनागर होगा, हर्ष भटनागर। हर्ष भटनागर आवाज दो। अटेंडेंस में सारे मिलेंगे, अभी यहाँ कोई नहीं मिल रहा। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन है। ABC Limited is facing a lot of problem these days. The company's profit margin is declining day to day. The production manager is blaming marketing manager, whereas marketing is blaming production manager, production department for not attaining the quality. Finance department blaming both. What quality of management do you think is lacking? Explain it briefly. यह आप बताइए। हाँ जी, कौन बताएगा इन पहले वालों को छोड़ के? काफी सारे बच्चे प्रेजेंट। हर्ष या सिमरन? हर्ष दीदी या सिमरन? भाई ये आवाज नहीं दे रहे आप लोग, ये गलत बात है। सर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हाँ, कौन बोला था? लड़का कौन बोला था? सौरभ है या अनिरुद्ध है? सर सौरभ। सौरभ, जवाब दिया करो बेटा, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? आपको आता था। हाँ बोलिए, क्या था आंसर? बोलिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आएगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे ब्लेम करे, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका आंसर, सॉरी। सिक्स्थ है, डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। दीपांशु गोयल है क्या? दीपांशु गोयल गर्वित होगा, गर्वित। हाँ जी, नहीं है, बोलिए आंसर दो बेटा। डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। सर मैं बताऊं? कौन बोल रहे हैं? सर सौरभ। सौरभ, बोलो। सर प्रोफेशनल मैनेजमेंट में एक बेसिक फीचर ये होता है कि वो दोनों ही वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों ही होते हैं, प्रोफेशन भी और मैनेजमेंट भी। मैनेजमेंट भी, दोनों वेल, बिल्कुल सही है आपका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए कंपनी वांट टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन मार्केट ड्यू टू द डिक्रीजिंग सेल।
You can imagine any product about which you are familiar. What decision steps should each level of management take to give effect to this decision? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. बिंदिया शिवाज आंसर तो इसका. सर नहीं आता. नहीं आता. आज ये कौन बताएगा? आज ये कोई? तमन्ना? तमन्ना बताइए क्वेश्चन का आंसर. कुमकुम? यस सर. आंसर तो इसका. सर टॉप मैनेजमेंट फर्स्ट पॉइंट है दे हाँ. मस्ट ऑर्गेनाइज एंड असेंबल नेसेसरी रिसोर्सेज. सेकंड पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट का दे मस्ट प्लान द टेक्निक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. टॉप मैनेजमेंट तो ये स्टेप टेक करेगी. और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है कि फर्स्ट पॉइंट है दे मस्ट मोटिवेट द पर्सनल टू वर्क टुवर्ड्स कंप्लीशमेंट ऑफ टास्क. सेकंड पॉइंट है इसका दे मस्ट इम्प्लीमेंट द प्लान्स मेड बाय टॉप लेवल इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. और लोअर लेवल मैनेजमेंट है दे मस्ट मेक एफर्ट टू इम्प्रूव द लॉयल्टी ऑफ वर्कर. एंड इसका लास्ट पॉइंट है दे मस्ट मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड रिड्यूस द वेस्टेज. ओके, थैंक यू. हाँ जी, 8th क्वेश्चन है Germany circus is organizing show internationally for the last 30 years. Their shows have been successful across the globe. Of late, their show were not as popular as they were in the past. After analyzing, they are thinking to bringing necessary change in their show to gain popularity. Identify the characteristics of management is reflected in above situation. Give reason. Second है which function of management is indicated here. आज सिमरन वर्मा आंसर दो बेटा इसका. सिमरन क्लास में है शायद. मंजीत सोनी? यस सर. हाँ बोलो को बेटा कौन सिमरन दे जवाब बोलो. सर नहीं आता. नहीं आता. और क्लास में कौन कौन है एक बार बताना मेरे को ताकि मैं इनको पता कर सकूं. जान सर हाँ 1 मिनट आप रुको. कौन कौन आ रहा है देख लें क्लास में. शिवरन बताना कौन क्लास में कौन कौन है. सर भावना है, भूपेंद्र है, बिंदिया, दीपांशु, गगन, गर्वित, जतिन, कंचन, कुमकुम, महेश, मंजित, प्रोमिला, सागर, साहेब, साक्षी, सौरभ, तमन्ना. सारे आए हुए हैं. साहेब साहेब यस सर. आंसर दे इसका. चुप क्यों बैठा है इतनी देर से. सर आता है. आता नहीं है. चलो मंजीत सोनी. मंजीत सोनी जवाब दो इसका. सर नहीं आता सर. नहीं आ रहा. आज सर, कौन मैं बताऊं? कौन बोल रहे हैं. सर भावना. भावना बोलो. सर मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. बिल्कुल करेक्ट है. और सर सेकंड वाले का टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल सही है आपका आंसर. सर हाँ सर सेकंड का ना प्लानिंग आएगा. 1 मिनट क्या था. विच फंक्शन ऑफ पूछा मैनेजमेंट. इसमें लेवल नहीं पूछा. हाँ फंक्शन. मैनेजमेंट ये प्लानिंग आएगा. फंक्शन पूछा इसने. अगर ये किस लेवल का होता तो टॉप में था.
पर ये फंक्शन पूछा तो है, तो लेवल्स मैनेजमेंट होता फंक्शन दिया आप, था, फंक्शन नहीं देखा। हाँ ये दिक्कत याद है, कोई बात नहीं, गलतियां ही हम करेंगे तभी सीखेंगे। हाँ जी, सर इसमें अगला कंट्रोलिंग भी क्वेश्चन। आएगा? कंट्रोलिंग तो नहीं आएगा बेटा, प्लानिंग करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि बड़ा फेमस था नहीं सर, पहले हमने हमारा प्लानिंग सर्च। एंड कंट्रोलिंग दोनों का रखा है इसमें। नहीं आपने तो कर रखा है, पर प्लानिंग ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, तो प्लानिंग आप इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक्सप्लेन। हाँ जी, कौन करेगा इसको एक्सप्लेन? सौरभ की आवाज़ आ रही थी शायद पहले। 9th क्वेश्चन है सौरभ, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक्सप्लेन, यानी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इनके बारे में बताना है। हाँ जी, एनीबॉडी, इनमें से कोई भी हो? कोई बताना चाहे सर हम बताएं? बताइए। हम बताएं। सर एक एक मिनट, अभी सक्सेसफुल कुमकुम को बताना, एंटरप्राइजेस, बोलिए कुमकुम, थोड़ी a आवाज़ ऊंची करो। successful enterprise has to achieve its goal effectively, which means the goal should be achieved within the time period. Efficiency refers to the optimum utilization of resources or no wastage of resources. नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हाँ ठीक है, दूसरी कौन बोल रही थी? भावना बोल रही थी, कंचन बोल रही थी? सेकंड कौन बोल रही थी लड़की? तमन्ना बोल रही और मैं बोल रही थी। तमन्ना बोल रही थी, बता दो। Sir, efficiently refer to getting the things done in a right way with no wastage of resources, and effectiveness refer to achieve target and setting goals in the right directions. एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर चाहे। Yes, sir, at any हाँ cost. ठीक, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, 11th है, पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इजी है, सॉरी मैं बीच में छोड़ गया एक। एक्सप्लेन द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये इसके बारे में बताइए। हाँ जी, साहिल होगा यहाँ? साहिल नहीं है, चलो साहेब आप बता दो। और किसी लड़की की टर्न नहीं आई है, वो बताए। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर हम बताएं? नहीं अभी ये कंचन बोल रही, कौन बोल रही थी? सर प्रोमिला। प्रोमिला, हाँ बोलो। Social objective of the organization deal with the commitment of the organization towards the society. ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन से Middle मैनेजमेंट का level. काम जो है? नो, कौन बोल रहे थे? Sir प्रोमिला। सर टॉप प्रोमिला, ये लेवल गलत हो गया क्वेश्चन। मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है ये, मिडिल लेवल का नहीं है। मिडिल लेवल का तो उसको एक्सप्लेन करना होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। आज 12th है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए 3 टायर मशीनरी बाय। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए 3 टायर मशीनरी बाय। हाँ जी, कौन बचा हुआ जिन्हें बताया नहीं अभी, जिसने एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं मैंने या उसने बताया नहीं है? कौन है? कोई है तो बता दें, वो इसका आंसर दे दें। हाँ जी, कोई नहीं ऐसा। सर हम हर्ष बताएं? है इसके अंदर, हर्ष इसके अंदर आए। हाँ कौन है ये लड़का? कौन बोला? मंजीत बोल रहा था क्या? सौरभ सर। बोलो बोलो। सर बिकॉज मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड 3 टायर ऑफ मशीनरी, बिकॉज सर इसमें 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं, टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है कि 3 लेवल इसके अंदर होते हैं। 13th क्वेश्चन है, नेम द intangible force which create a productive relationship among resources of an organization। कोई भी बता दे, काफी इजी है।
Name that intangible force which create a productive relationship among resources of an organization. हाँ जी, सर मैनेजमेंट। बोलिए। मैनेजमेंट बिल्कुल सही आंसर है। एक ही चीज है इंटेंजिबल है फोर्स, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट प्रोवाइड जजमेंट एंड विजन, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स जजमेंट एंड विजन, एक्सप्लेन। हाँ जी, कौन बता सर रहा है? बताएं। साक्षी। साक्षी, हाँ बोलो। Management provides judgment and vision because management keeps adjusting to it the complex, ever-changing external environment. It helps in decision making as it visualizes that future and the right course of action for sound decision become possible. Does it foresight provide judgment and vision? ठीक है। हाँ, दूसरा कौन लड़की बोल रही थी कि मैं बताऊं, कह रही थी, कौन है? मैनेजमेंट प्रोवाइड जजमेंट एंड विजन, एक्सप्लेन। हाँ जी, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए जो साक्षी ने बताया अभी। नहीं बोल पा रहा। मनजीत सोनी, मैं बता चुकी साक्षी इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों ने तो रीएड्रेस करना है इसको। कंचन। यस सर। बोलिए, आंसर बोलिए इसका। Management judgment and vision. This is because management keeps adjusting to the complex and ever-changing external environment. It helps in decision making as it visualizes the future and the right course of action for same sound decision become possible. ओके, ठीक है जी, थैंक यू। आज विच इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा कि इसमें से मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है? Operating सी। कोऑपरेटिंग है, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। क्योंकि हाँ, ओके, बिल्कुल सही है आप लोग। कोऑपरेटिंग जो वो आपका फंक्शन नहीं प्लानिंग का। 16th क्वेश्चन है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्रिज हैज यूज्ड न्यू टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ यूजिंग हार्मफुल गैसेस which do not cause air pollution, which value being followed here? हाँ जी, सर कोई भी बता दे सोशल। इसको। सोशल। सोशल वेलफेयर। हाँ, गगन जैन बोल रहे हैं क्या? सर सौरभ। किसने आंसर किया है? सौरभ ने। गगन जैन, बताइए आप इसका आंसर। गगन जैन, आर यू लिसनिंग में? कौन सा क्वेश्चन सर? 16th। 16 सर। सर सोशल वैल्यू। और 17th का आंसर और दे दो। सर प्रॉफिट मोटिव। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोटिव। सो ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, कल फिर करेंगे।